ਹੱਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਆਮ ਹੈ, ਡੰਕੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਐਡਾ ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਅਮਾਨ ਅਲ-ਹਫੀਜ਼। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ 2 4 5 7 16 ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾੜ ਸਾਵਣ ਵੇਖੇ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੇ, ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਸਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਸਾਇਲ ਸ਼ਦੀਦ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਵਾਕ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਬੰਨੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਮਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਂਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਦਲ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸਾਫ ਨੇ। 16 ਜਵਾਕ, 16 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਲਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ, ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਜੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਰ ਗਿਆ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਵਾਂ ਤੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਤਲਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ 12 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਟਿਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਪਿਓਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਪੈੜ ਚੰਗ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੇ ਪਾਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਜੂਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੂਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਆਪਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਆਪਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਲੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਲਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਰੋਲ ਸੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ 9 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ
ਤੇ ਨੋਟ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਵੇਨਾ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਵੇਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੰਗੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, 3 ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अल्लाह थोड़े कलेजे नूं उठारे ते सुकून देवे ते मां मुंडा खैर ना कर आवे, मुंडा खैर ना कर आएगा इंशाल्लाह। रब दे देर है, अंधेर नहीं हैगा। अम्मा मुंडे दा नां की है? विकास। की उम्र है मां? 20 साल उम्र। 20 साल उम्र है। किन्ने पुत्र जे? 5 पुत्र। है बड़ा है? नहीं, 2 नाल छोटा। तीजे नंबर दा है ना, 2 नालों निक्का। चौथा नंबर ते हैगा। चौथे नंबर ते मेरी भैन भी है। ते अम्मा किधर डंकी ला गया? किथे यूरोप जाना चाहता सी? सानू ते तुर्की दस्या सी, कराची जाके। इथों बगैर दसे कराची गया? बगैर दसे गया सी। कोई पता नहीं सी? नहीं पता। थानू की पता सी किथे गया विकास? ओने उत्थों फोन कीता, मैनू पैसे भेजो। किन्ने? डंकी ला के 8 लाख ले लिते सी उत्थे उन्होंने। ओए होए, थानू मुंडे ने उत्थों कराचीओ फोन कीता कि मैनू पैसे भेजो, मैं डंकी लानी है। तुसीं भेजते? फिर आगे जाके मैंने छोटी तुर्की आखदा छोटी जारी टपा के तो 10 लाख रुपये कर लिते, 2 लाख और बढ़ाए। पूरे 10 लाख ले लिते साढ़े को। दे दिते 10 लाख, मुंडा भी दे दिता। मुंडा भी दे दिता। उत्थे उन्होंने बंद कीते रेड़ किले ते उन्होंने फिर गड्डियां च पा के साढ़े पुत्र मुंडे गवाच दिते उन्होंने। अल्लाह वास्ते मुझे हमारे बच्चे चाहिए, वापस हमारे बच्चे लौटा दो। रात दिन हम तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे नहीं दिखते हमने। मैं 10 लाख पूरा किथों कीता सी? बस बेटा हमने माल डंगर बेचा, कोई रिश्तेदारों से पकड़े, कर्जे लए, माल डंगर बेचा, मकरूज होए। जान बच्चे घर पे बैठे हैं, बहुत परेशान है हम। खुदा के लिए हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे वापस लौटा दो। अम्मा एक लम्हे लिए मुंडे नू क्या नहीं कि पुत्र डंकी क्यों ला रहे हो, तो नुकसान हो जाएगा, की करांगे? मैंने कहा था बेटा वापस आ जाओ। क्या कहता था? मुझसे बात ही नहीं करी उसने। नाराज से? सबसे बड़ी अजियत क्या है कि जब नौजवानों को, मैं हर नौजवान से बात करूं, ये माँ तुम्हारी माँ है, इसको अपनी माँ के तौर पर देखें। अजाब क्या है कि जब माँ बाप मना करते हैं तो औलाद कहती है कि साडा अगे पैंदा पैर थानू जरदा नहीं। आज वो बेचारे फंसे बैठे हैं। कोई बाप भी नहीं है उसके सर पे, बच्चे जवान बेटी है, उसके बाप नहीं, मेरे बच्चे यतीम है, मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मा कोई आया थोड़े को, किसी ने आके थानू कोई दिलासा दिता, दस्या कि अम्मा कर दे पाए? बस इस तरह ही कहते हैं सारे, हमें तो बच्चे को तो पता ही नहीं चल रहा, हम क्या समझे उसको, कैसे यकीन दे। एड़ी वीडियोस आईयां ने, उनदे च अपना मुंडा भी है। ए वीडियोस दे मुंडा है अपना कोई? हाँ है ने, तीनों बेटे है ने। जंगलों में जड़े हुए इस तरह पुकार रहे, हमें बचाओ, हमें काट रहे, हमारे कान काट दिए, हम मार दिए, हमारे पास तो देखे नहीं जाते हमारे बच्चे। खुदा के लिए हमें इंसाफ चाहिए हमारे बच्चों का। दावों में हमने आलमी महाज पर बहुत बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। ये है महाज घर का। ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉन्ड, इस जंग में ईरान को मुश्किलात से निकालने में उसके लिए मुआवनत का काम, सफारतकारी फतूहात। आज उसका इम्तिहान अमली तौर पर आया है कि आपका वो भाई, वहां का निजाम आपके इन पाकिस्तानियों को महफूज रखने और उनके प्यारों तक पहुंचाने में क्या किरदार अदा करता है। मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह ताला माँ जी आसानी करे तो खैर ना मुंडा घर आवे, तो मेरी दुआ हैगी कि ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
کہ منڈے घर आ गए खैर हमारा बच्चा आ जाए, हम बहुत दुआ देंगे आपको। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। हमारा बच्चा। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी सोना रब करम करना आएगा, रब भी करेगा करम। अम्मा जी मुंडे दा नाम की है? मोहम्मद दिलशाद। उमर 22 साल। ਇਹ ਸਾਰੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਂ? एक जैसे सारे। ਇਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? बड़े दोस्त। ਤੇ ਅਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 10.5 लाख। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 8 ਲੱਖ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ। हाँ जी। 1.5 लाख रुपया उसने पहले ले लिए, कहते थे न कि हमारी गाड़ी खराब होगी, हम यहाँ 3 दिन हो गए भूखे प्यासे, 1.5 लाख रुपए पहले दे दिया। फिर 9 लाख रुपए मेरे बेटे ने पीछे करके दिए, बूढ़ा बाप कमाने वाला। ਤੇ हमारी एजेंट कौन हैगा सी? एजेंट ना कोई सलाम दुआ है जानते आमर भोबला हमारे मोहल्लेदार है। आमर भोबला को रिश्तेदारी भी है? हमारे मोहल्लेदार है। ए मस्जिद वाले पासे हाँ जी। पीछे उधर रहंदा है, हाँ पता लगा है। हाँ जी। ਤੇ ਆਮਰ ਬੋਬਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮਰ ਬੋਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਛੜੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਵੇਚ ਛੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮਰ ਬੋਬਲਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਸ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ 12 ਹਾਂਜੀ 12-13 साल बाद आया तो 2 महीने थे। 2 महीने की पता कर 2 महीने में उसने सबको अपना असीर किया है। 2 महीने में सबको अपनी उस मोहब्बत के और अपने वो जो पंजाबी कहते हैं ना शुका शाकी के जाल में फंसाया है। और उसके बाद ये पत्ता खेला तुर्क का, जिसने इन तमाम खानदानों में अजियत आम कर दी है। एक चीज समझने की कोशिश करें कि जब किसी नौजवान से कहा जाता है कि पुत्र इत्थे काम कर ला, डंकी लाएगा किते फंस जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। वो बड़े अजीजों कारे प्यारे मोहब्बत करने वाला हर शख्स जाहिल गवार मालूम होता है। उन्होंने कहते हैं ना तेनू की पता। अब वेखे ना बोबला गया सी, बोबले ने करदा मुंह दूजे पासे ला लिया बस। ते खुदा ना खास्ता पैड़ा वक्त होया, मापियां दी उमरां दी मिहनतां भी गईयां, उन्हां दा जवाक गया, मुंडा फस गया। मां जी मुंडे दी वीडियो कोई आई है? वीडियो सानी वेखी आई ते मैं चोरी नाल थोड़ी जी वेखी सी। विखाई नहीं ने तोनू? इन्हां ने भी कही मैं चोरी थोड़ी जी वेखी है। ते मेरे मुंडा मिल के गया सी कि वो भी कराची सी? नहीं इत्थे सी घर सी। ते पैसे किवें अरेंज कीते सो? बस पैसे तुसां दित्ते ने? एक मੱਝ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਛੜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੇਚ ਛੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅੱਜ 2 ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ 4 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ 5 ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ। अम्मा मुंडा की रौला पांदा सी कि मैनू जान दे, की करदा सी, क्यों पैसे दिते? ओनू दस्सिया नहीं कि पुत्र है गलत है तो ऐसे नहीं देने पैसे? ओने की पता खर की कुछ है, तो चुप करके निकल जाने, कोई रौला ही नहीं पाया। कराची जाके फोन कीता सी ओने। होर पैसे वाले नहीं कहंदा सी मैं चले आया। मैं के आखिरी टेलीफोन वही सी कराची ईरान तो कीता सी। फिर ईरान तू व्हाट्सएप ते? आहो। की कहंदा सी? कहंदा मैं टेंशन ना लवी, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਈ ਵੱਡਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੱਢ ਛੱਡੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਆਪੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। अल्लाह ताला थोड़े लिए आसानी करे। और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि दे मैटर, ये माएँ
اہمیت کی عامل ہیں. السلام علیکم. آپ بھائی ہیں؟ جی. 10 دن بعد جب آپ کو فون آیا تو کس کا فون تھا اور اس نے کیا کہا تھا آپ کو؟ وکاس کے نمبر سے ہی کال آئی تھی. وکاس کے اپنے واٹس ایپ نمبر سے کال نہیں آئی تھی. پہلے پتہ چلا تھا جو 10 لڑکے ہیں نا باقی ان کا میسیج آیا تھا بھائی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور وہ ہمیں سڑک میں پھینک گیا ہے تہران میں. اس نے بتایا تھا کہ ترکی کراس کر گئے ہیں. جس ٹائم اس نے لیکن اصل میں انہوں نے نہیں کیا. اصل میں نہیں کہ جس ٹائم اس نے پیمنٹ ہم سے نکلوائی ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ بھائی یہ جون سے نے یہ ترکی پہنچ گئے ہیں اب آپ پیمنٹ کراؤ اور صافی 8 لاکھ اور جو باقی جون سے ڈالرز کی کٹنگ ہوگی وہ بھی آپ لوگوں نے ہی دینی ہے. ہم نے کہا یار ہمارے بچے واپس بھیجو. کہ چھوڑ جاتا ہوں لے جاؤ اپنے بچے. یہ کس نے کہا؟ یہ عامر بوبلا نے کہا اوئے ہوئے کہ چھوڑ جاتا ہوں لے جاؤ اپنے بچے. ہم نے مجبوراً جب اس نے پیسے بڑھائے تو ہم نے جون سے اپنی بھینس سیل کی ہے جو جس سے ہمارے بچوں کا دودھ کا گزارا ہوا. اس کے بعد اس نے جس دن پیمنٹ ہو گئی ہے اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا ہے. ہم نے ان سے کہا بچوں سے رابطہ کروائیں. 3 سے 4 دن بعد بچوں کی کال آتی ہے جو اس کے پاس ہیں 10 کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. ہم ایران میں ہی ہیں. ہم نے یہاں پہ دیکھا وہ رات کو ہمیں پھینک گیا. ہم نے دیکھا تو یہاں پہ ایران کے جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں تو ترکی بتایا گیا تھا. بیسیکلی وہ کہہ رہے جو باڑ ہمیں کراس کرائی تھی وہ جو باڑ تھی وہ بھیڑوں کے لیے کسی نے کھیت میں جالیاں لگائی ہوئی تھیں. وہ جالیاں کراس کرائی ہیں. ان کو بتا دیا کہ یہ باڑ ہے. آپ کو یہ جو ویڈیوز کا سلسلہ آنے کا شروع ہوا ہے, میسیج کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ کیسے ہوا ہے کہ لڑکے اغوا ہو گئے؟ کیونکہ ابھی تک تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی بھیڑوں والی باڑ جو کسی کسان نے لگائی ہوئی ہے اس کو عبور کروا کے کہہ دیا جی یہ ترکی داخل ہو گئے. تو یہ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ لڑکے اغوا ہو گئے ہیں؟ یہ جب کال آئی ہے نا باقی 10 لڑکوں کی, جب اس نے کہا کہ بھئی ہمیں سڑک پہ پھینک گیا اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, دھوکہ کر دیا اس نے. پھر ہم نے اس کو کال کی کہ بھئی آپ کدھر ہو. اس کا 1 بجے تک نمبر بند تھا. کوئی رپلائی نہیں تھا. 1 بجے یہ واللہ عالم سو کے اٹھا یا جو بھی. اس کو ہم نے بتایا کہ بچے کہاں پہ ہیں. اس نے کہا جی وہ تو استنبول راستے میں جا رہے ہیں. وہ یہ آپ کے گاؤں کا جو لڑکا عامر بوبلا بوبلا صاحب, اس نے کہا کہ وہ استنبول جا رہے ہیں. ہم نے کہا جی بچے فلاں جگہ پہ اور فلاں کسی جھاڑو والے کے موبائل سے انہوں نے کال کیے, بڑے ترلے کر کے. ہاں جی بڑے ترلے لے کے ان سے کال کیا فلاں جگہ پہ ہیں. اچھا میں کرتا ہوں رابطہ. تو ہم نے کہا یہ اتنے بچے ہیں اور باقی 6 بچے نہیں ہیں, وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ آپ پریشان نہ ہو, اگر وہ ان کی کال نہیں آئی ابھی تک تو وہ کسی چور نے پکڑ لیے ہوں گے یا کسی پولیس نے پکڑ لیا ہوں گے. آپ کو کال یہ بقول اس کے ہیں عامر بوبلے کے, اپنی زبانی یہ باتیں ہیں. تو وہ بچے تو چلو اس کے پاس پہنچ کے ہم سارا دن جاگتے رہے. ایک جگہ پہ گھر میں UPS لگا ہوا ہے, وائی فائی لگا ہوا, ہم یہاں پہ نیٹ ورک نہیں آتا, ہم ادھر بیٹھے ہیں ساری رات بیٹھے رہے. گھر سے باہر جا کے رہنا پڑا. کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کال کا انتظار. ساری رات گزر گئی. صبح ہو گئی. صبح 10 بجے میرے پاس ایک میسیج آتا ہے جس میں ہمارے بھائی زنجیروں میں یہ پہلی ویڈیو آئی تھی, پہلی تصویر آئی تھی. اور اس کے بعد ہمارے بھائی رو رہے ہیں بھائی ہمیں بچا لو. ان کو $6,000 ایک کا مانگ رہے ہیں. وہ 15-17 لاکھ روپیہ. ہاں جی. ہم نے اسی ٹائم ہاں جی اپنے جس طرح کوشش کرتا ہے انسان, ہم نے اسی ٹائم بھاگ دوڑ شروع کر دی اپنی. پھر بتانے والوں نے بتایا کہ بھائی آپ پیسے اس ٹائم نہ بھیجو, اگر آپ نے بھیجے تو اگلی ڈیمانڈ پھر ہو جائے, نئے پیسے مانگ لیں گے. کیا دے سکتے ہیں؟ ہم نے اس کو کال کی بھائی. پھر اگلے دن اس کا جب ہمیں وہ ویڈیو آئی ہے اس کے بعد 1 بجے آن ہوا. ہم نے بوبلا کیا کہتا ہے اس بات پہ؟ کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو, میں پتہ کرتا ہوں. پیسے دیں؟ نہیں وہ کہتا ہے آپ بلاک کر دو نمبر ان کا. جس نمبر سے ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بلاک کر دو تاکہ پتہ ہی نہ چلے. تاکہ وہ پتہ ہی نہ. وہ کہتا ہے کہ یہ بلاک کر دو تاکہ مجھ سے وہ رابطہ کریں. بھائی آپ سے کیسے رابطہ کریں گے؟ آپ کا نمبر کیسے ان کے پاس جائے گا؟ بھائیوں کو ہمارا نمبر یاد ہے, وہ دے رہے ہیں ہمارا نمبر, وہ ہم نے کال کروا رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, میں پتہ کرتا ہوں. ایک دن تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو, صبح تک آپ کو خوشخبری ملے گی. اسی سلسلے میں 1 ہفتہ گزر گیا تھا. اور اس کے بعد آج کتنے دن ہو گئے اپنے بھائی سے بات کیے؟ اس کی آواز سنے کتنے دن ہو گئے؟ 15 سے زیادہ دن ہو گئے. 15 سے زیادہ. جب گھر آتے ہو تو ماں بہن یہ سارے پوچھتے نہیں کہ کہاں پہ؟ نہیں, اسی وجہ سے گھر ہی نہیں, بہنوں کی وجہ سے, امی کی وجہ سے نہیں, کہ ان کی طبیعت وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کسی امید سے کہ بھائی آ رہے ہیں کچھ بتائیں گے. ہم باہر حویلی میں بیٹھے رہتے ہیں, ادھر ہی اگر کھانا مل گیا تو کھا لیں گے. ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. گھر نہیں آ رہے.
सिर्फ इसी वजह से। क्यों भेजा था डंकी लगाने के लिए? पता था डंकी लग रही है? नहीं पता था, उसने बताया, उन्होंने इस तरह उनका ब्रेन वॉश किया था कि वो खुद ब खुद ही जिस तरह उसके पीछे दौड़े। लेकिन आपके भाई का नाम दोबारा बताइएगा। दिलशाद नाम। दिलशाद के पास 8 लाख और 10 लाख तो नहीं थे, ऐसी बात। उसको अरेंज तो आप लोगों ने करके दिए था। जब वो कराची निकल गया, जब उसने कॉल किए, हमें मजबूरन ये अरेंज करना पड़ा, वरना ये मुझे भाई एक बात बताए ना, यहाँ से वो कराची क्या करने गया था? वो उसी के साथ गया था। वो अपने पैसे पे लेके गया था कराची? वो अपने भाई, ये उनको पता है, वो तो हमें आपको आपके भाई ने, दिलशाद ने कराची से फोन किया? कराची, बल्कि उसने आमिर के नंबर से हमें कॉल की, भाई हम ईरान जा रहे हैं, भोबला के नंबर से, और इसको आपने 1.5 लाख रुपए करवाना है। वो आपने उसको नहीं कहा कि यार उत्थे जंग लगी हुई है? सर जी, उसने कॉल ही उस टाइम की कि बॉर्डर जब क्रॉस कर लिया, और आमिर के नंबर से मुझे कॉल आई कि मैसेज आया कि यार, मैंने कहा ये नंबर नया किसका है? आगे से वो बोला कि हम बॉर्डर क्रॉस करने लगे और आपने 1.5 लाख रुपए देना है। हमने उसको बड़ा रोका, नहीं जी क्या बात हुई थी उस कॉल पे? फोन था, व्हाट्सएप था? मैसेज था। वो उसने जो बाद में मैंने उससे कहा कि यार आप ऐसे इस तरह ना करो, कहता यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, इस तरह से। बस वही बात मरवा गई वो चीज़ें। फिर उसने बताया, मैंने कहा कौन कौन है? उसने बताया इसका भतीजा भी, इसके भांजे भी, 8 साल के बच्चे भी हैं, 2-3। इस डेरे के मेरे ख्याल से 8 लोग हैं। हाँ जी, 7 लोग हैं, जिनमें 8वां तो खुद है ना? 8वां खुद है जी। तो बस वो बाकी कुल 16 लोग हैं। हाँ जी। ये किस किस जिले के लोग हैं? ये हमें पता चला एक कसूर का है, और 4 जो उनसे गुजरावाला के हैं, कुछ इधर के हैं। वो हमें तो बस इनका पता था। ये तो अब जब यो इस तरह जब चला ये शोर, जब पता, अगर आज कुदरत आपको मौका दे और आपका भाई दोबारा आपको फोन करे और वो ये बात कहे कि भाई मैं बॉर्डर क्रॉस करने लगा हूँ, तो इसको इतने पैसे दे दें, क्या करेंगे? क्या दे देंगे आज भी पैसे? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उसने झूठ बुलवाया था। अगर वो इतना सगा होता तो फिर आगे तुर्की भी ले जाता। इसी तरह वो ब्लैकमेल कर रहा था कि मुंडे कहना नहीं मान रहे, पैसे भेजन। जो मोहब्बत करता है वो मरता है। अगर ये ना भेजते ता पेड़े सन, ना भेजे ता फंसे बैठे ना। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा काउंसलिंग पर काम करें, इस नौजवान नस्ल को रास्ता दिखाएं। ये भटके हुए कहानी है, जिन्हें लाई गली उनके नाल टुर चली वाली सिचुएशन चली हुई है। ए मां बेचारी टटी पई है, दसो मैनू मैं की सवाल करा? मेरे में हिम्मत नहीं है। बाहर चलते हैं जी। मैं मजीद खातीन को तंग नहीं करूंगा। अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे, और वो मौजज़ों का मालिक है, वो मुझसे कर सकता है। ये उस रब के मानने वाले हैं जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटी सी तादाद में कुफार मक्का पर हाकिम बनाया, उस बुत कदा को खाना काबा में कन्वर्ट करवाया। ये वो रब है जिसने अपने प्यारों को मछली के पेट में जिनकी हिफाजत की। ये वो रब है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को सलामती वाला बना दिया। ये जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वैसे इलीगल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक स्टेन है नाज़रीन। ये ऐसा दाग है, इस दाग से हर कोई बचना चाहता है, और इसमें जो विक्टिम होता है उसी पर ये इल्ज़ाम होता है कि ये लालच की और लालच में फंसे। अगर ये लालच ना करते तो इस लालच में ना फंसते। लाइक ये उन जराइम में से जिसमें विक्टिम पर भी उसकी बार होती है। वो बेचारा पहले मरा पड़ा होता है, उसका खानदान जो है वो नई बातें सुन रहा होता है। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होने लगा है जहां पर अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बिलखसूस इस मामले में इंतजामात शून्य, सिफर। बस की कहते ने रब्बी कोई सबब बन जाए तो बन गया, नहीं तो साढ़े ते ना रहना, जागते रहना। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। मुझे बहुत तकलीफ, अजियत, कर्ब नज़र आ रहा है आपकी आबादी में। जी सर। कहाँ से ये बला आपके गाँव आ गई, या पुराना कल्चर है यहाँ पर
छोड़ कर जाने का, डंकी लगाने का? इस गांव में तो ये जो लड़का गया था ना, जिसको हम बोबला कहते हैं, आमिर जिसका नाम है, और ये पहला बंदा है। आमिर बोबला पहला बंदा था जो डंकी लगा के गया था, और इसकी डंकी कामयाब रह गई। हाँ जी, ये 12 साल जो है ना, जो हमें इन्फॉर्मेशन है, ये ईरान में, तुर्की में और यूनान में, 3 कंट्रीज़ में जो है ये रह के आया है। तो ये तकरीबन 12 साल बाद जो यहाँ पे आया, तो जो उसके एज फेलो बच्चे थे या उससे कोई 2-3 साल छोटे थे, अब ज़ाहिर है सलाम दुआ ताल्लुक़ तो उनके साथ था। जब ये आया तो बच्चे उसके साथ आते जाते थे, बाहर घूमते फिरते थे, रेस्टोरेंट। आमिर तो बाबू बन गया। हाँ जी, वो तो बाबू बन गया, ऑब्वियस ही बात है, उसका गेटअप सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो इन्होंने जो है, ये बच्चे जो हैं वो बड़ा से जो है इंस्पायर हाँ जी, ये बड़े जो है इम्प्रेस हुए उससे कि यार इसने तो सारी चीज़ें ही बदल दी हैं। और फिर जो है हमें ये सुनने में आया, क्योंकि हम बच्चों के सर पे तो नहीं होते, कि जी वो बच्चे इसके साथ गैदरिंग्स में जाते थे, लाइक खाना शाना खाने जाते थे, वहाँ पे 1000 रुपया 500 रुपये लोगों को टिप दे रहा है, शोभदाबाजी। इन्होंने कहा कि जी ज़िंदगी तो वो जी रहा, हम तो हमें दलील ही हो रहे हैं। तो वो खैर ये तकरीबन जो है वो 3 माह यहाँ पे रहा है। उस दौरान इसकी शादी भी हुई है इन लोगों ने, हाँ जी, उन लोगों ने जो है इसकी शादी भी अटेंड की है, और जो है ना वो काफ़ी टाइम उसके साथ जो है गुजारा है। तो ये पहले भी एक दफ़ा हमें ख्वाहिश जाहिर करता जो दिलशाद है कि जी मैंने इस तरह जाना है, तो हमने उसको सख्ती से कहा कि भाईजान आप इधर ही कमा लो, तो हमें जो है ना वो 1 टाइम के बारे में, 2 टाइम के नहीं बारे में, तो हमने नहीं जाना देना। अच्छा, रुखी खा लांगे पर सुख दिखाने। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इसको जो है ना वो मना भी किया, मुझसे भी नाराज़ है, मेरे साथ इसका बड़ा प्यार है, तो मुझे जो है वो 2-4 महीने नहीं बोला। मैं तो खैर उसको 2-4 गालियाँ गुलियाँ निकाल के दांत में निकाल दूँगा, जिस तरह एक बॉन्डिंग होती है कज़नों के साथ। मेरे मामू का बेटा है। तो अब सर हुआ ये कि जब ये निकल गया ना कराची से ग्वादर की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त ये कह रहा है कि जी हम जो है वो कॉल आई है कज़न को कि इस तरह भाई हम जा रहे हैं, और जो है ना इसको जो है ना वो आप पैसे सेंड कर दें। आपको तो नहीं, मुझे नहीं कहा, अपने भाई को कॉल की। तो वो कहते हैं कि यार तुम किधर जा रहे हो, तुम्हें पहले मना किया था, तो तुम पागल हो, हमने वहाँ सुनी हुई है कि जो है वो नाखून खींच लेते हैं, हाथ काट देते हैं। तो कहता कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ हासिल करना है या कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, ये मतलब उसके अल्फाज से। उसके बाद ये खैर चले जाते हैं, वहाँ पे भी उनसे जो ये पैसे मंगाते हैं मज़ीद कि जी अब हमने जो है ना वो इस्तांबुल जाना है, क्योंकि इस्तांबुल तक की कमिटमेंट थी उसकी। उसने कहा जी इस्तांबुल हमने जाना है, तो अब जो है ना आप मज़ीद जब हम पहुँच जाएंगे ना तब आपने इनको पैसे भेजने हैं। उनको वो गाड़ी में बिठा के जो है वो 2-4-5 घंटे घुमा फिर आके एक कमरे में सारे लड़कों को ले आता है। वो सारे थम्स अप करते हैं कि जी हम तुर्की पहुंच गए हैं, तुर्की की सिटी का नाम लेते हैं। तो ये भी बड़े खुश होते हैं कि लो ये मुंडे तुर्की पहुंच गए ना, बोबला सारी फनकारी कर रहा है। ये सारी फनकारी वही कर रहा है। अब जो है जी हमें भी जो व्हाट्सएप कज़न्स के ग्रुप बने होते हैं, हमने कहा चलो यार मुबारकबाद चल रही। अब वो खैर सर क्या हुआ कि उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद जो है वो कॉल आती है, और कॉल ये आती है कि जी कज़न है, उसको कॉल आती है कि भाई इस तरह जो है ना ये हमें मार देंगे, और जो है ना तुम लोग इनको पैसे दे दो, उसके चक्रों में ना रहना। उसने ही हमें जो फंसवाया, बोबला ने, हाँ, गाली निकाल के कि इस कंजर ने हमें फंसाया है। अच्छा, वो खैर जो है वो परेशान हो जाता, वो कहता है यार इस तरह मुझे कॉल आई है। तो खैर वो फौरी तौर पे जो है वो रब्ता करते हैं इस लड़के के साथ, बोबले के साथ, कि यार इस तरह ये क्या काम है। तो वो कहता है जी नहीं ऐसा कोई काम नहीं है, आप लोग बेफिक्र हो जाएं, वो इस्तांबुल के लिए निकले हुए हैं, तो जो है ना वो पहुंच जाएंगे। बोबला कहता है इस्तांबुल के लिए निकले, हालांकि है ही नहीं। हाँ, हालांकि है ही नहीं, उधर ही हैं वो बच्चे कहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि जी उसके बाद वो उसे बार बार ये जब उसको फॉलो करते हैं कि यार तुम बताओ कि बच्चे हैं, कोई मतलब चीज़ तो नहीं है कि जो गुम गई है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पेंसिल नहीं बच्चे ने। वो कहता है कि जी इस तरह मेरे वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके साथ कोई $300 का पर पर्सन इशू हुआ था, तो जो है ना उन्होंने उनको रास्ते में कहीं उतार दिया, तो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको चोरों ने पकड़ लिया। अब ये कहते हैं यार ये तो कोई बात ना, चोरों ने पकड़ लिया, तुमने पैसे किए थे, तुम्हें हमने मौके पे पैसे भेज दिए, ये तुम क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो। ये बड़े प्यार से सारे उससे जो है ना बात करते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं सर जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी जी, उनकी इस डंकी में जी फैमिलीज ने मुकम्मल सपोर्ट किया? नहीं सर, चाहते ना चाहते हुए। देखें सर, अगर सपोर्ट होती ना तो लास्ट टाइम हमने उसको कोयटा से पकड़वा दिया था। इसको, बोबला को? नहीं, तोते को। तोता को? अच्छा, दिलशाद पहले भी भागा है? ये पहले एक दफ़ा गया था और किसी बंदे के साथ ही गया था, तो हमने इसको जो है वहाँ पे जो है वो दोस्त से हमारे, हमने इसको पकड़वा दिया था। हमने कहा कि तुमने नहीं जाना। उसके बाद ये चुप कर गया। लिफ्टों का बड़ा अच्छा कारीगर है, लिफ्ट ऑपरेटर है, और उसके बाद इसको
उसका ऑटो रेनर का सारा काम आता है। फिर ये ठेके पे गए, इस्लामाबाद काम करता रहा, बड़ा अच्छा भला जो निज़ाम था, जो साथ वकास लड़का है वो भी बड़ा अच्छा ठेके पे काम करता रहा। इवन के जो ट्रांजैक्शन हुई है उसने अपनी स्किल्ड लेबर थी ना, स्किल थी बस इनको, मतलब इवन कि मैंने एक दफ़ा इसको कहा था कि इस तरह मैं तुम्हारी जॉब का, तो वो इसको ठेके वाला काम नहीं, सिर्फ जॉब पे 60,000 रुपये में रख रहे थे। तो वो कह रहे थे अपॉर्चुनिटीज भी थी, हाँ स्किल भी थी, लेकिन वो जो कानों में बात पड़ती है ना, बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, शायद उत्थे दरख्तां ना टंगे हुए ने पैसे, मापियां नूं भी रोया, अजियत दिवाई। वो बता रहे हैं कि लिफ्ट ऑपरेटर था और लिफ्ट ऑपरेटर के साथ मेंटेनेंस का काम भी करता था। उसको सारा लिफ्ट की जो इन और आउटर सारा काम आता था, मेंटेनेंस का भी काम जानता था, कारीगर था पूरा। हमारे पास भी यहाँ एक लिफ्ट ऑपरेटर है और उसकी भी वो मलेशिया की और इलीगलिटी। हम लोग सर उसके साथ नीचे काम करते हैं जी, 4-5 लड़के उसके साथ नीचे काम करते थे, ठेकेदार था प्रॉपर। और वो दूसरा जो लड़का है वकास विक्की, वो भी ठेकेदार है, अच्छा भला उसका लिफ्ट का काम है। इवन के जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो लाहौर एलिवेटर के नाम से हुई हैं उसको। हो मतलब वो अगर उसी कंपनी की, जिस कंपनी का प्रॉपर उसकी कंपनी रजिस्टर्ड थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई क्या चाहिए, क्या चाहते हैं? बस हम ये आपका भी भाई किया हुआ है? जी उसामा भाई है। क्या उम्र है? उसामा की 20 साल उम्र है। सारे बीवी भाई 24 साल है जी, सबकी तकरीबन इतनी एज है। कितने पैसे दिए हैं आपने? भरे पैसे? जी भाई बड़े उसने। क्यों भरे हैं? सवाल ये क्यों? बस ये समझ लें वो जब चले गए मजबूर होके फिर भरने पड़ गए। भाई पैसे क्यों भरे थे? हथी क्यों उन्होंने आगे सटिया जे? बस ये समझ लें कि मजबूर होके भरने पड़ गए हमें। क्या मजबूरी थी? मजबूरी हमें यही बताया गया था कि वो बिल्कुल ईरान की बॉर्डर उन्होंने क्रॉस कर ली है, अब वापस भी नहीं आ सकते, तो मजबूरन आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे। ये किसने कहा था? ये आमिर के जो नंबर से उन्होंने कॉल की थी भाई ने, तो उससे बात हुई थी वाले। कितनी देर में पैसे भेजे थे? पैसे तो हमने ये उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाई। कितनी देर में? टेलीफोन की कितनी देर बाद? टेलीफोन पे उसकी जो फर्स्ट डिमांड थी ना वो 2 लाख की थी। कितनी देर में भेजे? वो तकरीबन हमने एक दो दिन के अंदर अंदर ना भेज दिए थे। फिर डिमांड क्या थी? फिर उसके जो कमिटमेंट थी वो 6 लाख की थी, लेकिन दोबारा उसकी 8 लाख की हमसे ना डिमांड की उसने। जब उसने हमें लास्ट टाइम उनकी वीडियो बना के थम्स अप बनवाए कि हम तुर्की के इस तरह करके कैसी हम तुर्की पहुंच गए, पैसे दे दो। तुर्की पहुंच गए और तुर्की के वो गांव का नाम लिया था दोगो ब्याज। हम उधर पहुंच गए तो आप जो है हम बिल्कुल ठीक हैं, तो उसने फिर हमसे 8 लाख की डिमांड कर दी, जबकि 2 लाख हमने पहले दे दिए थे। आपने कहा आप 6 देना है? जी, उन्होंने कहा 8 ही देना है। जी 8 ही देना है। लेकिन और जो वो अलहदा जो खर्चा उसने लिया उधर का रास्ते का खर्चा और जो डॉलर में कन्वर्ट करवाने का वो उसने अलहदा से कितना बना कुल? वो तकरीबन 1 लाख ऊपर वो बन गया। यानी आप 11 लाख रुपए अब तक भर चुके हैं? जी 11 लाख। और हाथ में कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है, बल्कि भाई भी गवा लिए। भाई भी गवा दिया। और अल्लाह उसकी खैर करे। इतनी उसकी ना तशद्दुद वाली वीडियो के बस देखी नहीं जाती। हथी पैसे दे के भरा फसाया, उन्हें तशद्दुद करा रहे ने और इस तवक्को पर कि ए बनने लग जाएगा। आप इमेजिन करिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि समंदर के बीचों बीच तेज लहरों में एक शख्स जो है वो बिल्कुल जहाज के किनारे पर जाकर अपने खानदान को कहे, कबीले को कहे कि मैं जजीरे पर पहुंचने लगा हूं और जजीरा कहाँ है कोई पता नहीं। अंदर खौफनाक मछलियां फिर रही हैं, मगरमच्छ फिर रहे हैं, फैमिली छलांग लगाने दे रही है। जाहिर है वो पकड़ भी नहीं सकते, आते तो मुंडा करते बूहे तो खड़ा तो काबू नहीं आता जो जवान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह से पनाह मांगे, बुरे वक्त से पनाह मांगे। नाउ द सिचुएशन इज कि ये लोग वो हैं जो बेचारे शायद घरों को भी, मुझे एक साहब ने बताया पीछे, आपने बताया था एक साहब, वो दूसरे भाई ने बताया कि भाई हम तो घर भी नहीं जाते, हम हवेली में बैठे रहते हैं, वहीं पे खाना मिल जाए तो खा लेते। क्यों? क्योंकि घर जाते हैं तो बहनें और माँ पूछती हैं कि कितने खड़ाया जे भरा। एक ऐसी खौफनाक सिचुएशन है। अगर नहीं है कोई तो रियासती मशीनरी नहीं है। उनके लिए बहुत सिंपल है कि जी वो एक रटा रटाया फिक्रा है कि जब तक लालची जिंदा है तब तक फ्रॉडिया और धोखेबाज भूखा नहीं मरेगा। बट क्वेश्चन इज के भाई ये सुराख खुले क्यों रखे में? ऐसे लोग जो चले सक्सेसफुली डंकी लगा ली,
بھائی جب یہ واپس آتے ہیں ان کے خلاف قانون اپنی کارروائی کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں وہ یہاں سے کئی سارا وہ جو ایڑ اکٹھا کر کے لے جاندے ہیں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. ہمیں دے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان، اس قبیلے، اس دیہات، اس گاؤں اور اس تمام تر قافلے کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ ڈنکی کے مرض میں شامل ہیں یا آئندہ دنوں میں ہونے جا رہے ہیں، اللہ ان کو پناہ میں رکھے، ہدایت دے. کیونکہ دوسرے کے شر سے بچنے کی تو کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اگر میں نے طے کر لیے کہ میں نے اس گٹر میں چھلانگ لگانی ہے اور میرے پاس تمام اپرچونٹیز بھی ہیں، گٹر پہ ڈھکن نہ ہونا پھر میرے نقصان کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ I decided to plunge, I decided to jump. پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈھکن نہیں تھا جس وجہ سے بھائی صاحب اندر چلے گئے. بھائی صاحب نے خود فیصلہ کیا اور یہی سب سے کمزور کڑی ہے اس پورے کیس کی یا اس جیسے تمام کیسز کی. یہی وجہ ہے کہ ریاست پرو ایکٹیولی ان معاملات پر کام بھی نہیں کر پاتی ہے. اللہ ہر ماں کی لال کو سلامت رکھے، بیکاز بڑھاپے میں جوان اولاد کا درد دکھ سب سے بڑی اذیت ہے. السلام علیکم.